Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 5th video of population interaction, in which you will learn the two important concepts. The commensalism and amensalism. In part first video lecture, you have learned the mutualism. In part second video lecture, you have learned the competition. In part third video lecture, you have learned the predation type of parasitism, and in previous just before this video you have learned the predations, and there are so many examples of predations, parasitism, as well as the mutualism, competitions you have. And as I have told you in previous video lecture, from this topic only examples are given and the interaction may asked. So keep in mind the different kinds of examples should be in your mind before examination. So don't ignore the example. As possible as I can do for you, that is I have bring you for the different kinds of example as a picture, as a pictorial view. I have provided you the different kinds of example in order to a mindset for that kinds of interaction. So be with the video lecture till the end and watch the video carefully, and according to video lecture you should prepare the notes. I will also send you the notes that totally prepared by me, totally typed by me, but you should also clear your concept regarding the video lecture and the concept regarding the commensalism and amensalism. The commensalism means one organisms get benefited while other neither get benefited nor harms, and the amensalism one get harmed while other neither get benefited nor harmed. So whatever the interesting things, it will be discussed in this video lecture. So be with the video lecture. Let back over the concepts. Now the commensalism. Just before the commensalism, you have learned the predations, in which many example and advantage of predations are actually important to you. Example of predations are actually important to you, and how do the different kinds of predators, especially adaptations in predators are very important, especially for the monarch butterfly. It may be asked in the examination. The adaptation in monarch butterfly are actually found in their caterpillar. Actually the caterpillar of monarch butterfly are similarly as like the leaf, and it secrete the toxic substances. ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है, जिससे कोई भी प्रीडेटर्स, चाहे बर्ड हो चाहे कोई भी रेप्टाइल्स, उसको खाना नहीं चाहता है. रीजन क्या है कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रेट करता है. और टॉक्सिक सब्सटेंसेस गेन कहाँ से करता है? जिस लीव्स को ये खाता है ना, उसी लीफ से टॉक्सिक सब्सटेंस को ये खाता ही है. टॉक्सिक ऐसे प्लांट्स के साथ रहता है जिसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स सिक्रेट्स होते हैं, और ये उनको खा के अपनी टॉक्सिसिटी को इन्हेंस करता रहता है. यानी ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस गेन कहाँ से करता है? द टॉक्सिक प्लांट से. ठीक है, तो एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मोनार्च बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है. नाउ बैक टू द कॉमनसेलिज्म. कॉमनसेलिज्म इज वेरी एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंटरेक्शन, in which one organisms get benefited while other neither get benefited nor harmed, and it can be explained as population interaction among two or more than two living organisms in such a manner that one get benefited while other neither get benefited nor harmed. I think your definition is over, and you can do the definition in the different other language, but there is no need to focus on the other word. I have provided you the definition as according to my language over your screen. So plus sign for those organisms that get benefited, while zero sign for those organisms that neither get benefited nor harmed. Let back over the example. Orchid grow over mango tree. This is the better example to understand the concepts of the commensalism. When the orchid plants, as you can see, that green color and having white flower, this is the orchid plants. This is the orchid plants, and the plants where the orchids grow are actually nothing the mango, well popular plants mango. अब दोनों में इंटरेक्शन कैसे होता है? देखो, ऑर्किड्स ग्रो तो जरूर करता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो सब कुछ अपना कर सकता है. ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से. ठीक है, ये जो है अपना वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है. ठीक है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन
ये रूट में क्यों नहीं ग्रो करता, क्योंकि इसका ये सॉइल में क्यों नहीं ग्रो करता, क्योंकि इसका रूट इस तरह से मॉडिफाइड है कि एज अ पैरासाइट्स ये ग्रो करता है। लेकिन ये पैरासाइट्स है नहीं, क्योंकि पैरासाइट्स में एक एडवांटेज लेता है, इसका रूट्स पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए, इसको एक एडिशनल सपोर्ट्स के लिए कोई प्लांट चाहिए होता है। और प्लांट किसको ये ढूंढता है, ये प्लांट ढूंढता है मैंगो के लिए। इसमें ये मैंगो को कोई नुकसान नहीं होता है, मैंगो को कोई ना फायदा होता है ऑर्किड से ग्रो करने से, ना ही कोई नुकसान होता है। लेकिन ऑर्किड को क्या मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि मैंगो के ब्रांच पूरी तरह से ऑर्किड के लिए सूटेबल है। ऐसा नहीं कि मैंगो पे ही ग्रो करता है, लेकिन कॉमनली ये मैंगो पे ही ग्रो करता है, बहुत सारे प्लांट पे भी ग्रो करता है। लेकिन अगर एग्जाम्पल ऑर्किड ग्रो ओवर मैंगो अगर आ जाए तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, एज वी नो दैट ऑर्किड एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड एबल टू एब्जॉर्ब द वाटर from atmosphere, but for the support it can grow over the mango plants. I hope the explanation is necessary, which can be explained by you in very easy language, and the diagram or pictorial view that you can see can help you to learn, remember for this interaction long time up to examination. ठीक है, एग्जामिनेशन तक ये आपके दिमाग में रहेगा कि ऑर्किड अगर मैंगो पे ग्रो कर रहा है तो इससे मैंगो को कोई नुकसान या फायदा नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ऑर्किड को ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एग्रेट मूविंग बिहाइंड द कैटल्स। ऐसा सीन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर गांव में बिलोंग करते हैं, जो चरवाहे चराने जाते हैं, उसमें आप देखे होंगे कि गाय चर रही है। ये क्या है, कोई भी कैटल्स हो सकता है, काऊ बफेलो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैटल के पीछे ये जो बर्ड्स दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं एग्रेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्रेट। और ये एग्रेट इसके पीछे पीछे क्यों चल रहा है भाई, आप जानते होंगे ना, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। तो इसके पैर से जो घासें दब रही है ना, उस घास के दबने से कुछ कीड़े बाहर आते हैं, जिसको ये एग्रेट खाता रहता है। इससे एग्रेट को तो बेनिफिट होता है, एग्रेट को क्या बेनिफिट होता है, इसको फूड मिल जाता है। बट कैटल्स को इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, कैटल्स को इससे कोई ना फ़ायदा ना तो नुकसान है, क्योंकि वो कीड़ों को खा नहीं सकता है। कीड़े दब रहे हैं तो निकल रहे हैं बिल से बाहर, तो एग्रेट को फ़ायदा हो रहा है। तो इससे जो इंटरेक्शन बन रहा है ना, इससे जो इंटरेक्शन बन रहा है वो एक बेटर एग्जाम्पल है क्या हमारा, वो एक बेटर एग्जाम्पल है कॉमनसेलिज्म का। इसको आप दिमाग में रखिएगा, एग्रेट मूविंग बिहाइंड द कैटल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमनसेलिज्म इन विच टोटल बेनिफिटेड गेन्ड बाय द एग्रेट, वाइल कैटल्स डू नॉट नाइदर गेट बेनिफिटेड नॉर हार्म। बेनिफिट तो होता नहीं, नुकसान भी एक पैसे का नहीं है यहाँ पे कैटल्स को। बर्नाकल्स ग्रो ओवर द बैक ऑफ वेल्स। एक्चुअल में जो बर्नाकल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कब कंपटीशन में, कैथामेलस और बैलेनस, ये एक तरह के क्या होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं। कभी कभी ये वेल की पीठ पे ग्रो कर जाते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये वेल है, ये वेल बैक है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, बर्नाकल्स है। ये जो ग्रो किया हुआ है ये बर्नाकल्स है। बर्नाकल्स अपने लोकोमोटरी बिहेवियर के लिए, बर्नाकल चूँकि पूरी तरह से स्टेशनरी फेज में रहता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाता है, तो ये सिर्फ जो है अपने स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए ये वेल के पीठ पे ग्रो कर जाता है, जिससे वेल जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है और कहीं अपनी पीठ वगैरह को रब करती है, तो बर्नाकल्स वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। इससे ये अपने पॉपुलेशन को थ्रू आउट द एक्वाटिक हैबिटेट थ्रू आउट द ओशियन एंड सी स्प्रेड करने में इसको मदद मिलती है। तो इससे जो बर्नाकल्स है अपने रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया को, अपने पॉपुलेशन को तो स्प्रेड आउट करता है, बट इससे वेल को क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं। और वेल को नुकसान क्या है, कोई नुकसान नहीं। तो यहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा है और एक को नहीं फ़ायदा नहीं नुकसान हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल है बर्नाकल्स ग्रो ओवर द बैक ऑफ वेल। सी एनिमोन्स इन द एंड द क्लॉन फिश। ये क्लॉन फिश जो दिख रहा है ना, एक देख रही है, ये क्लॉन फिश है, इसको बोलते हैं क्लॉन फिश। ठीक है, ये क्लॉन फिश है, क्लॉन फिश। और ये जो दिख रहा है ना टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स किसका है, टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोल। सी एनिमोल्स के टेंटिकल्स में क्लॉन फिश जाके छुप जाती है। रीजन क्या है, ये अपने आप को शेल्टर ढूंढती है, ये सिर्फ इसको शेल्टर चाहिए, शेल्टर मीन्स रहने की जगह चाहिए, और इससे इसको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। जो क्लॉन फिश का टेंटिकल्स है ना, ये टेंटिकल्स से सी एनिमोन का जो टेंटिकल्स है, इससे इस क्लॉन फिश को क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, जिससे ये देखो ये छोटी सी दिख रही है, तो ये क्लॉन फिश अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है।
इससे क्लॉन फिश को तो एडवांटेज मिलता ही मिलता है, क्लॉन फिश को इससे बढ़िया एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसके बीच में, इसके टेंटिकल्स में क्लॉन फिश जो इतनी कायदे से रहती है ना कि इससे नहीं टेंटिकल्स ब्रेक होता है, नहीं टेंटिकल्स को नुकसान पहुंचता है, मतलब नहीं सी एनिमल्स को फायदा होता है और नहीं नुकसान होता है। इसलिए ये बेटर एग्जांपल है किसका, ये बेटर एग्जांपल है कॉमन सेलिज्म का। आई होप इसको कर ले जाएंगे अपने लैंग्वेज में। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एज वी नो दैट देयर इज अ नो एडवांटेज और देयर इज नो एनी हार्मिंग टेकन आउट इन द tentacles of sea animals, while the clownfish get the shelter in order to prevent themselves from the predators, so that clownfish get benefited while the sea animal neither get benefited nor harmed। ठीक है, तो ये बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल गया। ये सब कुछ एग्जाम्पल, इसको आपको क्या करना है, कॉपी में एक्सप्लेन कर लेना है। एक्सप्लेनेशन भी आता है एग्जाम में। कॉपी अगर मैं आपका इवेल्युएट किया, अगर ये सब सारे पॉइंट्स, चाहे वो ऑर्किड ग्रोवर मैंगो हो गया, चाहे क्लॉन फिश इनसाइड द टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमल्स, चाहे आपका ये एग्रेड मूविंग बिहाइंड द कैटल्स और बर्नाकल्स ओवर द बैक्स, ठीक है, ये सबको एक्सप्लेन आपको अपने लैंग्वेज में करना है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ें हैं, ये सब अपने लैंग्वेज में। ऑर्किड ग्रोवर मैंगो ये भी एक्सप्लेन करना है, एग्रेड मूविंग बिहाइंड द कैटल्स ये भी अपने लैंग्वेज में, बर्नाकल्स गो ओवर द बैक, और क्या क्या फोकस आउट, क्या पॉइंट आउट करके, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेलिज्म फोकस और पॉइंट आउट करके एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं करना है। चलो आगे आते हैं, और लास्ट हमारा है एमेन सेलिज्म। और एमेन सेलिज्म क्या है, when two individuals live in such a manner that one get harmed while other neither get harmed nor benefited. It means in such a manner that when the two living organisms live together in so that the one get harmed, एक को नुकसान होता है और दूसरे को न तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम विथ बैक्टीरिया। देखो, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है, जिसको आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया की कॉलोनी पे बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनी है। इस बैक्टीरिया की कॉलोनी की अगर बीच में अगर कोई अगर फंगस ग्रो कर जाए, कोई अगर फंगस ग्रो कर जाए, तो फंगस से जो केमिकल सीक्रेट होता है एंटीबायोटिक्स, इससे बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या हो जाती है, किल्ड हो जाती है। इससे ऐसा नहीं है कि इसको कुछ फ़ायदा पहुंचता है ना, इससे जो है इस फंगस को कोई फ़ायदा नहीं है इस और कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सारा नुकसान किसको हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की कॉलोनी को हो रही है। और ये बेटर एग्जाम्पल है किसका, ये बेटर एग्जाम्पल है एमेन सेलिज्म का, जिसमें एक को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं होता लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाता है। तो आई होप ये आपको 1 to 6 जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये नोट्स आपको पूरा टोटली मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट्स मैंने अपने ढंग से आपके लिए बनाया है विद द वीडियो लेक्चर एंड विद द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इन विच यू हैव लर्न द म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशंस, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म एंड एमेन सेलिज्म, एंड यू शुड पॉइंट आउट द कंपटीशन। अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, कंपटीशन एंड प्रीडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्रूड पैरासिटिज्म और म्यूचुअलिज्म में कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको फोकस करना है, लेकिन कंपटीशन में गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोलैंस फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड मैकार्थर एक्सपेरिमेंट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये कंपटीशन, सारे एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट्स आप फोकस कर लेंगे। प्रीडेशंस, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल। ये बहुत एग्जाम्पल, कॉमन सेलिज्म, एमन सेलिज्म से कम ही पूछता है, लेकिन कॉमन सेलिज्म, पैरासिटिज्म ये तो एकदम हद कर देता है। ठीक है, तो एकदम आपको फोकस करने हैं एग्जाम्पल पे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेसन और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं सबका जो है एक समरी बना करके सारे लिंक को एक पेज पे करके आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आप कभी कभी व्हाट्सएप से नहीं रहते, कभी व्हाट्सएप पे रहते हैं, इकट्ठे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी कि चैप्टर 5 जो हमारा लेफ्ट हो गया था, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो चैप्टर 15 था, इसको मैं ये 2 से 3 दिन का टॉपिक है, इसको जब स्कूल ओपन हो जाएगा अच्छे से और फाइनल रिवीजन का भी हमको टाइम मिलेगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मैंने कहा था कि 21 से अगर स्कूल नहीं ओपन होता है तो हम तुरंत बिना डिले किए चैप्टर 5 शुरू कर देंगे। अब हम चैप्टर 5 शुरू कर दे रहे हैं, यानी कि उस पर आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, उस पर पूरी तरह से लाइव क्लास अटेंड करने, यूट्यूब को वीडियो देखना है, साथ साथ
नोट्स मैं आपको भेजता रहूँगा। थैंक यू।